یہ چھپر ایک سکول ہے. آپ نے ایسا سکول زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا. ہمارے پاس تعلیم کا کوئی سسٹم تو نہیں تھا نا. دینی دنیاوی کوئی تعلیم نہیں. ابھی بھی بچے جو ہے وہ ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. یہ کپڑے کے بنے ہوئے بیگ ہیں ان بچوں کے. کتنی کلاس تک پڑھ سکتے ہیں؟ مطلب اس سے آگے نہیں جا سکتے. گوجری طرز پہ یہ قاعدہ لکھا گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور مالک کا بہت بہت کرم ہوگا آپ سب پہ. تو آج میں موجود ہوں اپنے بکروال بھائیوں کے ڈیرے پہ اور یہ ہیں ہمارے مکھن صاحب. آج میں آپ کو ایک ایسی چیز دکھانے جا رہا ہوں جو کہ آپ نے زندگی میں کبھی پہلے نہیں دیکھی ہوگی. بیسک میں آتا ہوں خوبصورتی دکھانے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ مجھے دکھانی چاہیے اور یہ حق بھی بنتا ہے. آج میں آپ کو بکروال بھائیوں کے بچوں کا سکول دکھانے جا رہا ہوں. بھائی صاحب ان کے بچے کیسے تعلیم حاصل کرتے ہیں، کیا سسٹم نظام ہے، گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی، کیسے ان کا سارا سسٹم نظام چلتا ہے. ظاہر سی بات ہے ان کے بھی بچے ہیں، ان کا بھی حق ہے تعلیم اور ایک ایجوکیشن سسٹم ان کے پاس پراپر ہونا چاہیے. وہ ساری چیزیں میں آج آپ کو بتاؤں گا اس ولاگ میں. تو بھائی صاحب یہ سین ہے، انہی سینز کے ساتھ آج کا ولاگ کرتے ہیں سٹارٹ. یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک سکول ہے. آپ نے ایسا سکول زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا. یہ چھپر ایک سکول ہے. اس کی تفصیلات ہم مکھن صاحب سے بھی پوچھیں گے. مکھن صاحب السلام علیکم. یہ بتائیں کہ یہ جو سکول ہے اس کا کیا سسٹم نظام ہے، یہ کیسے بنا اور اس کے اندر کیا آپ کے بچے اس وقت تعلیم لے رہے ہیں؟ لے رہے ہیں بالکل. تو یہ کیسے بنا سکول، اس کا کیا سسٹم نظام ہے؟ یہ یار ایک بار کی بیچارے وہ کوپری کی ایک یہ موبائل سکول والوں کی صحیح کو تنظیم ایک ہے، ٹھیک. انہوں نے دیا کو گزارا خرچہ پرچہ وہ بھی دیتے، تھوڑا بہت خرچہ پرچہ وہ بھی دیتے. کچھ ہم کرتے. صحیح تو باقی یار ہمارے پاس تعلیم کا کوئی سسٹم تو نہیں تھا نا. صحیح. تو بس انہوں نے کوئی تھوڑا یہ کیا تو وہ ذریعہ بن گیا. یہ کتنا عرصہ ہو گیا اس کو آپ کے پاس؟ ہمارے پاس تو تقریباً 2-3 مہینہ ہو گیا. آپ کے پاس 2-3 مہینے سے یہ سکول ہے. اس سے پہلے آپ کے جتنے بھی بچے ہیں وہ بغیر پڑھے ہی بڑے ہوئے ہیں، بغیر تعلیم کے. سب دینی دنیاوی کوئی تعلیم نہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے بھائی صاحب ایسے حالات بھی ہوتے ہیں. کیا ان بچوں کا حق نہیں ہے تعلیم؟ کیا ان کو ضرورت نہیں ہے تعلیم کی؟ وہ تو ہر ایک شخص کا بنیادی حق ہے. مکھن صاحب یہ بتائیں کہ کبھی کسی گورنمنٹ نے آپ سے یہ پوچھا ہو کہ آپ کے حالات کیسے ہیں، آپ کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں؟ کبھی پیدا ہوا آج تک نہیں کوئی گورنمنٹ کا بندہ نہیں جی. یہ گورنمنٹ نے کاغذوں میں نہیں آیا سب بالکل بالکل ہی ساڑھے مت نظر ہی نہیں رکھنے. یہ حالات ہیں. ویسے بھی جو ہمارا دوسرا ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے حالات آگے بہت خراب ہیں. یہ مطلب ہمارے کو بھائی تھے بیچارے، یہ صحیح کو باہر کی کمپنی امریکہ کی، صحیح ان بیچاروں نے دیا ایک تنظیم ہے. ٹھیک ہو گیا. کچھ تو خرچہ وہ دیتے، کوئی ہم دیتے، کوئی اور ہمارا بھائی بھی جو دیکھتا سنتا ہے صحیح ہو گیا. کسی کو حسب توفیق ہوئی تو وہ بھی دے دے. ٹھیک ہو گیا. ثواب کا کام ہے یہ. صحیح. اچھا کام. ابھی ہم چلتے ہیں، آپ کو سکول دکھاتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ ان بچوں کو کچھ ڈونیٹ کریں گے یا نہیں. تو چلتے ہیں مکھن صاحب کے ساتھ اندر جا کے سکول دکھاتے ہیں. ان کے ٹیچر بھی بیٹھے ہوئے ہیں بچوں کے. السلام علیکم. یہ ہے جی سکول بچوں کا، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ ہیں ماسٹر عابد صاحب. السلام علیکم عابد بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ یہ ہیں ان کے ٹیچر اور یہ سارے بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں. سائڈ پہ چھوٹی بچیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں. عابد بھائی آپ کی بھی بہت زیادہ خدمت ہے. مطلب آپ تو ایک نارمل ریگولر لائف گزارتے ہیں اور پھر آ کے اب آپ ان کے ساتھ سسٹم نظام چلا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ یہاں پہ آئے تو ان بچوں کی کیا صورتحال تھی تعلیم کے حوالے سے؟ تعلیم کے حوالے سے بالکل میرے خیال سے جو ہے نا کوئی بھی ان کا ایسا کچھ نظام سسٹم نہیں تھا، جو کہ بچے بالکل میرا خیال ہے نا وہ تعلیم سے بالکل لاپتہ. اس چیز کے بارے میں نہ ان کو علم ہی نہیں تھا. کیا ہر بچے کو پہلا کلمہ آتا تھا؟ نہیں بالکل. مطلب تعلیم نظام، یہ ایجوکیشن مطلب تعلیم چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو، اس سے ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں تھا کہ چاہے یہ چیز بھی زندگی میں لازم ہے کہ نہیں. صحیح. اس چیز سے بالکل ان کو، جب ہماری ٹیم یہاں آئی تھی سروے کے لیے تو بچوں کو دیکھا، پھر ان کے حالات دیکھے تو پھر انہوں نے یہ سوچا کہ ان کو تعلیم سے. صحیح. ابھی بھی ان بچوں کی پراپر کوئی ڈریسنگ وغیرہ، کوئی سٹنگ کا سسٹم نظام نہیں ہے اور سکول بھی جو ہے وہ ایک جھونپڑی میں بنا ہوا ہے. بالکل. تو جب بارش ہوتی ہے تو کیا صورتحال ہوتی ہے یہاں کی؟ بارش میں تو یہ سمجھ لیں کہ بالکل پانی آتا ہوگا. ظاہر سی بات ہے، اوپر چھت ہے، وہ دیکھیں چھت ساری کھلی ہوئی ہے تو یہاں سے پانی آتا ہوگا. بارش میں تو یہ بالکل پڑھنے کے قابل نہیں رہتے بارش ہوں میں گے. تو یہ سمجھے کہ اسکول
बंद हो जाता है। तो 10 दिन अगर बारिश रही तो 10 दिन स्कूल बंद। सही। और अभी ये क्या पढ़ रहे हैं, इनका सिलेबस कौन सा है? कोई किताब किसी बच्चे की उठा के दिखाएं थोड़ा बहुत। ये इनका जो मतलब बुनियादी गोजरी जो मादरी ज़ुबान है ना, उसके अंदर ये पहला जो बुनियादी कायदा है गोजरी अरफा को कायदो, गोजरी इसको गोजरी ज़ुबान, क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज है मदर लैंग्वेज वो गोजरी है, तो गोजरी में इनको गोजरी में ही तालीम दी जाती है ताकि इन बच्चों के लिए आसानी हो सके, क्योंकि इनकी बेस तो बनी हुई नहीं होती बिल्कुल भी, तो इसलिए गोजरी में ही इनकी बेस बनाने की कोशिश की जाती है। इसमें क्या कुछ होता है इस कायदे में? ये बिल्कुल बुनियादी गोजरी कायदा है, जैसा कि जिस तरह बाकी स्कूलों में सही उर्दू का कायदा होता है, इसके साथ अंग्रेज़ी का, इस तरह इनकी मादरी ज़ुबान के अंदर ये जो गोजरी कायदा तरतीब दिया हुआ है, इसके अंदर मतलब वो अल्फाज उर्दू के भी आते हैं मगर वो अल्फाज के जो गोजरी ज़ुबान में ज़्यादातर बोले जाते हैं। सही। एक बुनियादी गोजरी तर्ज पे ये कायदा लिखा गया है, इससे कि बच्चों को मतलब अपनी ज़ुबान में ज़्यादा समझ आए। सही। इस तरह से 3 महीने के अंदर आपने इन बच्चों पे काम किया है, तो मतलब कलिमा तो अब इनको आता ही होगा, बेसिक इस्लामिक एजुकेशन भी आप ही देते हैं इनको, नमाज हर चीज़ आप ही सिखा रहे हैं। जाहिर सी बात है 3 महीने में ये फ़ौरन से तो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी, तो कलिमा इन बच्चों को आता है अभी, सब चीज़ें छोटी छोटी। सुने इनसे किसी से, मेरा कोई हक नहीं बनता, मेरा कोई राइट नहीं बनता कि मैं इन बच्चों से आके सुनूं, लेकिन वैसे एक बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत हो जाती है। और इनके बैग्स आपको दिखाता हूँ, ये नदीम अपना बैग दिखाए हैं, ये कपड़े के बने हुए बैग हैं इन बच्चों के। कोई खातिर कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई सिस्टम निज़ाम उस तरह का नहीं है। हम अपने जो पुराने थे उनसे ऐसी स्टोरीज सुना करते थे कि हमने ऐसा स्कूल में दौर गुजारा और ऐसा गुजारा, तो इन तकरीबन बच्चों के पास जो है वही जो है पुराना सिस्टम निज़ाम है। और अभी नदीम आपको कलिमा वगैरह आता है? पहला कलिमा सुनाओ ना। शाबाश, आप सुनाओ। शाबाश, आप सुनाओ। एक क्यूटी सा बच्चा है, घबरा गया है, आप सुनाओ। शाबाश, आप सुनाओ। चलो शाबाश, कोई मसला नहीं है। तो ये जब आए हैं हमारे भाई आबद भाई यहाँ पे आए, उन्होंने इन बच्चों को जो है वो तालीम का सिस्टम निज़ाम और वो प्रोवाइड किया। आबद भाई की भी सैलरी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, जो इनके टीचर हैं उनकी भी सैलरी बहुत लिमिटेड सी है, जो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे देखी। तो कोई भी बंदा अगर इनको डोनेट करना चाहता है, यहाँ पे नीचे मेरा इंस्टाग्राम है, उस इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट करके इनको डोनेट कर सकते हैं। वो आपकी डोनेशन इंशाल्लाह हम इन तक पहुँचा देंगे। बाकी आपको स्कूल का एक मरतबा फिर बाहर से भी मैं व्यू चेक करवा देता हूँ। और अभी आबद साहब से ये पूछते हैं कि और किस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं। आबद में क्या ख्याल है, क्या चीज़ हो तो ये इम्प्रूव हो सकता है सिस्टम निज़ाम? मतलब इसके अंदर ये तो बिल्कुल एक वो पुराने तर्ज के अंदर है, जिस तरह टाट पे बैठ के लोग पढ़ा करते थे पहले ज़माने में, तो मतलब कोई भी खातिर ख्वाह इंतज़ाम मौजूद नहीं है, जिस तरह बाकी लोगों को बाकी अवाम को प्रोवाइड करते हैं हुकूमत की तरफ से। मगर हुकूमत की तरफ से तो कुछ भी नहीं है, ये कुछ अफराद हैं मतलब जो बैरून मुल्क हैं या पाकिस्तान के अंदर बैठ के इस चीज़ को चला रहे हैं, जिन्होंने ये खाना बदोश लोगों के अंदर ये महसूस किया कि चाहे इनके बच्चों का भी हक़ है तालीम हासिल करना। तो जब उन्होंने ये इस चीज़ का सर्वे किया तो मतलब बकरवाल लोगों के अंदर इस चीज़ की बहुत कमी पाएगी, शऊर की, बुनियादी तालीम की। तो उस वजह से ये जो बुनियादी ये शुरू किया गया है, इसके अंदर जितना हो सके कोई मज़ीद बेहतरी लाने के लिए अगर कोई कर सकता है तो मज़ीद बहुत कुछ अभी इसमें बाकी है। अच्छा, एक और सवाल जो मेरे माइंड में आया है, मक्खन साहब ये बताएं कि जब आप लोग सफ़र करके पहुंचते हैं ठंडे इलाके की तरफ, जैसे आपका डेरा गंगा चोटी जाता है, तो उस टाइम पे क्या ये स्कूल गंगा चोटी पे भी इन बच्चों के साथ मौजूद होता है? जी, गंगा चोटी पे मौजूद होता है। तो ये आबद भाई आप वहाँ पे गंगा चोटी इनके साथ होंगे? जब ये यहाँ से ट्रैवल करेंगे ना तो मैं वापस अपने घर चला जाऊंगा। ठीक। तो जब ये सफ़र करके वहाँ पहुँचेंगे तो फिर मैं मतलब जिस तरह बच्चों को वेकेशंस होती हैं गर्मियों की या सर्दियों की 2 माह की, तो इनकी वो छुट्टियां जो होती हैं वो जो सफ़र में होता है वो छुट्टी होती है। सही। बाकी आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल अभी भी बच्चे जो है वो टाट पे बैठ के पढ़ रहे हैं और ये इनका तालीमी निज़ाम है। स्कूल में आपको बाहर से एक मरतबा फिर दिखा देता हूँ सारा। ऐसा स्कूल आपने ज़िंदगी में नहीं देखा होगा। ये हालात हैं जी, और इस तरफ कांटे लगा के इसको रोका गया है। मतलब
कुछ कह नहीं सकता बंदा इस ज़िंदगी के बारे में। देखने में तो शायद ये सारी चीज़ें आपको और तरह की अलग सी लगें, लेकिन मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने फ़ील किया है कि बहुत सारी चीज़ों की कमी है इन बच्चों के लिए। और देखें, बेशक के साथ ये टाट पे बैठ के ही पढ़ें, लेकिन एटलीस्ट इनके पास बुक्स होनी चाहिए, इनके पास एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होना चाहिए, ताकि बच्चों को अच्छी तालीम जो है, यूनिफॉर्म से तालीम नहीं मिलती, लेकिन यूनिफॉर्म एक सिस्टम बिल्ड करता है, एक निज़ाम बिल्ड करता है, ताकि इनको एक अच्छी तालीम मिल सके। अब आबद भाई जो हैं वो सब कुछ मैनेज करते हैं, सुबह बच्चों को उठते हैं, पढ़ाते हैं, और शाम को जो है वो फिर इनको कुरान करीम की तालीम देते हैं। तो ये काफ़ी स्ट्रगलिंग और काफ़ी हार्ड लाइफ है, ख़ास करके एक टीचर की भी। अब यहाँ पे ये पढ़ेंगे, कितनी क्लास तक पढ़ते हैं मैं वो भी आपको बताता हूँ। अच्छा, एक सवाल जो रह गया मक्खन साहब, आबद भाई, ये बच्चे आपके पास कितनी क्लास तक पढ़ सकते हैं, मतलब उससे आगे नहीं जा सकते? मतलब ये जो निज़ाम है तालीम का, दूसरी से लेकर पाँचवीं तक, बस पाँचवीं तक, उससे अगर कोई पढ़ना चाहे या वो अपने अखराजात पे खुद, अपने अखराजात पे अपने तहत। तो ये स्कूल सिर्फ 5th तक है, प्राइमरी एजुकेशन जिसको कहते हैं। अभी को भाई हमारा इसमें अगर कोई साथ देगा ना, ये आगे भी चल सकता है। इंशाल्लाह ज़रूर लोग आपका साथ देंगे, हम उम्मीद करते हैं। और ये अभी सिर्फ़ और सिर्फ 5th तक है, मतलब प्राइमरी एजुकेशन यहाँ पे मिलती है बच्चों को। मुकम्मल जो तालीमी निज़ाम होता है एक, कि कोई बच्चा यहाँ पे हिफ्ज़ कर सके या फिर किसी भी तरह का कोई एजुकेशन लेके किसी बड़े लेवल पे जा सके, वो नहीं है। बेसिकली 5th तक भी ये जो बेस होती है, ये सिर्फ बच्चों को अच्छे बुरे की पहचान करवाती है। बाकी जो चीज़ें होती हैं, टेक्निकल चीज़ें, वो इन बच्चों को बिल्कुल भी पता नहीं होती। इतना होता है कि उर्दू शायद ये पढ़ सकते हो 5th तक जो बच्चा इनका होता है, थोड़ा बहुत हिसाब किताब वो कर लेता हो। लेकिन मैं अगर बात करूँ इंटरनेशनल लैंग्वेजेस, इंग्लिश वगैरह की, अरबिक वगैरह की, तो उसमें वो बच्चा बिल्कुल वीक होगा। अभी अंदर इनकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सुबह जिस तरह हमारे सिस्टम होता है अटेंडेंस का, अब्दुल रहमान, हसन अली, नूरीन बीवी, नौशीन, ये इनका अटेंडेंस का सिस्टम था। और आबद भाई अभी सब बच्चों के अटेंडेंस वो लगाई है इन्होंने। तकरीबन बच्चे प्रेजेंट हैं, बस 1-2 नहीं आए, बाकी ये 7 हैं डेरे इनके। यहाँ इन डेरों से ये सारे बच्चे जो है पढ़ने के लिए इस स्कूल में आते हैं। चलो कल करो सबक पढ़िए, कल सबक याद है सारा ना? सही तरीका ना? यू किस चीज़ को फोटो है? गुलेल किसते बने? गाइन के किसते बने? गाइन के बने? गाइन के बने? गाइन के बने? गाइन तो और केड़ी गल बने? एक बंदो दसो ना, एक बंदो अली तो 10 के बने गाइन ते? ये सारी गल किसते बने? गाइन ते बने। किसते बने? ते यो गुलेल को फोटो है ना, इसके नाम यो गुलेल को ना लिखे हो, इसके बीच गाइन सियाने तो केड़ो है? यो शाबाश, यो क्या चीज़ है? गाइन है। यो क्या है? गाइन है। ये इन बच्चों का कायदा होता है जी, जिसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, और इसी से आबद भाई भी इनको पढ़ा रहे हैं। अल्लाह से लेके गाइन तक पढ़। अल्लाह फरमात पे बे पे फे ते टे ठे से जी जे जे छे एक है दाल डार दे डार दे राल रे अड़े जे सी शीत स्वाद स्वाद तो गाइड। शाबाश, माशाल्लाह। ये 3 महीने की आबद भाई की मेहनत है कि आबद भाई ने उन बच्चों को जिनको एक हर्फ की पहचान नहीं थी, और किसी चीज़ का पता भी नहीं था, उनको इस लेवल पे पहुंचा दिया कि एटलीस्ट उनको तालीम के निज़ाम की समझ आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। फेते
के बने फौजी बने फिर ये एजुकेशन सिस्टम भी आपने देखा, ये तालीमी निज़ाम भी आपने देखा, जहाँ पर हमारे बच्चे ऐसे स्कूलों में जाके पढ़ते हैं जहाँ पे एसी लगे होते हैं। भाई साहब एसी ना हो तो फ़ैन होते हैं। एसी थोड़ा अपर लेवल के लोगों के अगर बच्चे देखे जाएं तो वो उस क्लास में पढ़ते हैं जहाँ पे एसी वगैरह लगे होते हैं। तो ये भी बच्चे हैं जो कि ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जिसमें ना कोई एसी है, ना कोई फ़ैन है और ना ही कोई लाइट है। तो साबर भाई पूरी वीडियो हमने डिस्कस की है इस चीज़ के बारे में। आप क्या कहना चाहते हैं लोगों से कि इसका क्या किया जाए इस चीज़ का? हम तो ये कहना चाहते हैं, ये देखो हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं अपनी मदद से, जो हमसे हो रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन लोगों की भी बस जिसको अल्लाह ताला ने दिया वो अगर मदद करना चाहता है तो वो ऐसी अदारों की मदद करे। हमारा तो ये कहना है। तो भाई साहब तालीम भी सदका जारिया है अगर आप किसी को प्रोवाइड करते हैं सिस्टम निज़ाम सारा। तो होप सो कि आपने ये सारी चीज़ें देखी, पहली दफ़ा होंगी। ये लाजमी बताइएगा कि कौन से इलाके से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और क्या आपने कभी ऐसा स्कूल, ऐसा एजुकेशन सिस्टम आज से पहले देखा है या नहीं। आज से 50 साल पिछली बात नहीं कर रहा, दौर हाज़िर में मौजूद जो ये वक्त चल रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि आपने ऐसा स्कूल सिस्टम या ऐसा एजुकेशन सिस्टम आज तक अभी इस दौर में कहीं देखा है या नहीं। ये था जी बकरवाल बच्चों का स्कूल। होप सो आपने देखा होगा, आपने इनकी लाइफ को अंडरस्टैंड किया होगा और उम्मीद है कि आपको हमारे व्लॉग्स पसंद भी आ रहे होंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।